morning. Today we'll finish this chapter, Microbes in Human Welfare. We know microbes are very harmful to human. At the same time, they are also very beneficial to us. So, in previous two classes we learned that microbes are helpful in household productions, food preparations, and industrial preparations of alcohol, medicines, antibiotics, organic acids, various chemicals, bioactive agents. So microbes also helpful in secondary or biological treatment of sewage. Microbes are also help in energy production. We have seen it in biogas fermentation in biogas plant, in gobar gas plant. Microbes are basically methanococcus, methane producing bacteria. They are anaerobic archaebacteria. So they are responsible. Today we will focus on these three things: biocontrol agents, biofertilizers. Where these two things are used? These two things are used in agriculture. That's why I have written here agriculture. What is the main purpose of agriculture? Food production is the main purpose. Nowadays, not the food production. By agrochemical based agriculture, it is a type of traditional agriculture. Since time immemorial, before 10,000 years ago, human civilization started agriculture. Even now we are doing agriculture. So in 1963 or say 1960s, in India Green Revolution started. Green Revolution. By means of Green Revolution, we increased our food production up to 3 times. Prior to that, our agricultural produce was very less. And from 1963 onwards, we can triple our food production. Basically due to use of chemical fertilizers and pesticides. All are chemicals. So use of fertilizers and pesticides in agriculture is called agrochemical based agriculture. Not only that, in this agrochemical based agriculture, we applied management techniques, better yielding hybrid plants, crop plants. That is also important. So who is the father of Green Revolution? आमे जदि पृथ्वी स्तर रे चिंता करिबा, ग्रीन रिवोल्यूशन रो फादर किए, ताले इंडिया रो ग्रीन रिवोल्यूशन फादर से तामाने इंडिया रो ग्रीन रिवोल्यूशन रो जनक किए? हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन. तेणु से स्वामीनाथन गुरु टीचर से होचंती बार्लॉग. नेट रो सर्च कर दे परियो हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन. बार्लॉग नाम
तांकर स्टूडेंट इंडिया रे ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट करथिले पंजाब राजस्थान एरिया रे हाइब्रिड गहम सब आमे इम्प्लांट कलो सो वी increase the farm production but later on we got some bad results in the sense our soil become infertile ताने soil fertility reduce होला तो हमको बारंबार बेसी सार दबा को पड़िला बेसी केमिकल्स दबा को पड़िला ताले application of chemicals causing a tremendous destruction in our ecosystem. So, ecosystem getting disturbed. So, chemicals destroyed our ecosystem. So, in agrochemical based agriculture, we used chemicals in terms of fertilizer and pesticide, and these two type of chemicals are destroying our ecosystem. That's why they are not eco-friendly. So these two things are eco-friendly. So these two things are substitute for the chemicals. Biocontrol agent is the biopesticide. So it is a substitute for chemical fertilizer. Biofertilizer, it is a fertilizer, but it is the substitute of chemical fertilizer. So nowadays we are used to purchase the farm products. जी हमको कहबो सार एटा बढ़िया जिंस सार भलो हो. What does it mean? It means organic farm based agriculture. सार दिया ही बढ़िया जिंस not chalani. Chalani means we are applying chemicals. But next to agrochemical based agriculture, now this is the on demand. Organic farming, organic agriculture. So the farmers are not traditional. एठी हमें फार्मर को कहथले ट्रेडिशनल फार्मर्स, conventional farming. Now it is organic farming. Most of the film stars, they are nowadays not doing any shooting work. They are taking drugs and they are doing farming. They are called celebrities. Anyway, so in organic farming, we are using biopesticides. Very important. Every one is a 2.5 marks short note. You have to write 2 to 3 sentences minimum. Maximum you can write whatever you know. Correct. So listen, in agrochemical based agriculture, we are destroying our biodiversity. Listen, when we are applying chemicals to kill one particular insect pest, under the influence of chemical, that insect will die, and you see the food chain will be disturbed. Tale food chain re kon that insect is the food material for another organism. Tale when we kill that insect, the food of another organism getting affected. Tale food chain disturb ho gala. Tale agrochemical based agriculture killing the pest indiscriminately. आमे जदि मारिचे पोक ताले मरिबो चढ़ो कारण चिंता कर फूड चेन रे गाँ गहली रे आमे सान बेले कजल पाती देखु
Nowadays it is very much so to say extinct. Nowadays shagunas are no more, vultures. तेणु धान क्षेत्र सब मारिले इनडिस्क्रिमिनेट केमिकल्स, पोक खाइले, कजलपाती धान गछक आसिले से पोक खाइले, ताले कजलपाती गेटिंग डिसेंट्री डायरिया, से तो वेटरनरी जाई परियोनी, वैसे ही मर गया। ताले कौन हला? That bird कजलपाती, that was not our target. We targeted pest, but it indirectly killed the dwarf. Tale, this is the problem. So, in organic farming, we are not intentionally killing all the insects. That is not our intention. Our intention कौन? ना integrated pest management. So, integrated pest management means we will not completely eradicate the insects, but we will keep the insects, the pest at manageable level by means of complex system of checks and balance within the vibrant ecosystem. ताले आमे सब इंसेक्ट पेस्ट को मारी दबानी, ताको गोटे मैनेजेबल लेवल रे रखिवा, सो दैट दे विल नॉट डिस्ट्रॉय आवर क्रॉप। बहुत हे गेले तो जेंति पाकिस्तान रो सब पंगपाळ ओडी आसिले टीवी न्यूज रे खाली दला हेई पंगपाळ आइले घंटा बजा से सोडी पळे, ता माने से माने मास डिस्ट्रक्शन कर दे क्रॉप को। ताले एग्रोकेमिकल बेस्ड organic farming will not at all eradicate the pest, instead it will keep the pest at manageable levels by checks and balances. Clear? So, organic farmers hold the view that eradication of a pest is not only possible but undesirable. For without them, the beneficial predatory or parasitic insect depend them as a food would not be able to survive. मु सेटा को कहली फूड चेन डिस्टर्ब हो जाउछ, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में से कथा करा जाय। आमे ऑर्गेनिक फार्मिंग रे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करबा। सो द चैप्टर नेम इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तमाने nowadays we are using microorganism as a fertilizer. Nowadays we are using microorganism as a pesticide. They are not chemicals. They are not going to destroy our ecosystem. So these things are eco-friendly. Chemicals are ecological dushman. Clear? Now we'll consider some examples under this paragraph. What can be the examples? Biopesticides are microbes, no doubt. They can be bacteria, they can be fungi, they can be viruses, they can be insects. तो व्यवसाय इंसेक्ट का तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नो, you are correct, but some insects are doing the role of biopesticides. So these organisms, when applied, they will kill only target organisms. They will never kill Kajolapati. So this is the benefit. Only target organisms will be killed. That's all. We'll take one by one. Very important example under bacteria is Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis. It will be very
जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड एग्रीकल्चर ताले एग्रीकल्चर तीन रकम एग्रीकल्चर काम होची फूड प्रोडक्शन करिवा सेडो अनहेल्दी फूड प्रोडक्शन करी इकोसिस्टम खराब न करिया पई आमे बायोपेस्टिसाइड बायो फर्टिलाइजर यूज करिवा दीज आर नथिंग बट माइक्रोब्स एवरेज सुमरी नाउ these are the examples of biopesticides under bacteria. This is a very famous example, sometimes it comes as a short note, Bacillus thuringiensis याको शॉर्ट रे कोन लिखा हुए जानि जो BT. So Bacillus thuringiensis in short we are writing it is written as BT, short note खाली BT पढिबा तले Bacillus 11th class रे पढा हितला when the bacterial shape is rod shape it is Bacillus, when it is spherical it is Coccus. तो नाम से पता चल रहा है बैक्टीरिया दिखने में रॉड लाइक, एलोपैथिक कैप्सूल लाइक अंडर माइक्रोस्कोप. सो Bacillus thuringiensis it is a soil bacteria. Listen carefully. So suppose this is a Bacillus thuringiensis bacteria. Its cytoplasm interestingly contains some crystals, protein crystals. These are the pesticides. So these protein crystals are called Bt toxin or cry protein, small letter cry protein. बड़ा लेटर में लिखी परिबो. क्राई का मतलब क्या होता है? रोना धोना नहीं है. क्राई मीन्स a short form of crystallization. ये क्रिस्टल वाला प्रोटीन है. इसका मतलब क्या है? Listen carefully. So you can argue, sir, if this toxin can kill one insect, why this bacteria itself not getting killed? ये क्यों नहीं मर रहा है? इंसेक्ट खाने पर ही मर रहा है. This is the thing. Bt toxins is inactive when it is in crystal form. It is called protoxin. This is the inactive toxin. When one insect caterpillar insect ro life cycle रे गोटे संभाला स्टेज कैटरपिलर स्टेज आसीबो. In that caterpillar stage the caterpillar eat the crop leaves. पत्र खाइबो. पत्र खाइले हमर फसल क्रॉप नष्ट हो. तो आमे कोन करिबा? will apply this bacteria. ताले ए बैक्टीरिया रो स्पोर गुडा को ड्राई स्पोर को मार्केट रो किडियानी पानी रे गुळी will spray. ताले पत्र दिए Bacillus thuringiensis रो स्पोर लगी गला. when a caterpillar will eat ता एलिमेंटरी कैनाल रे तारो मिड गट रे बैक्टीरिया रो स्पोर ता डिसॉल्व करि जीवो. ता साइटोप्लाज्म रो क्रिस्टल बीटी टॉक्सिन गुडा को अल्कालाइन पीएच मीडियम रे डिसॉल्व कर दियो. ताले क्रिस्टल फॉर्म रे तो टॉक्सिन ता इनएक्टिव थिला, बैक्टीरिया मरु न थिला. वर्तमान ता खाद्य नळी भितरे मिड गट भितरे सेटा सॉल्युबलाइज हे एक्टिव हेला अल्कालाइन मीडियम. एलिमेंटरी कैनाल रो पीएच वैल्यू ता टिके 7 रु बेसी तो अल्कालाइन. तो alkaline medium रे Bt toxin get activated. ताले protoxin become toxin. Now that toxin will cause the mucosa layer swelling. Mucosa layer will swell and burst. धीरे धीरे elementary canal will become porous. छिद्र युक्त हो जाए. Just like sieve, चालूनी भरी है. कैटरपिलर परलोक सीधा जाएगा. राम नाम सत्य है. तमाने we
protected our crop by application of dry spores. साइंटिस्ट माने कोनी दिमाग लगे कहले केते ही बैक्टीरिया को कल्चर करिवा स्प्रे करिवा, क्यों ना इसका जीन को प्लांट सेल के अंदर डाल दिया जाए, तो प्लांट का हर एक पार्ट्स में बीटा टॉक्सिन वाला प्रोटीन हो जाए। तले that is called genetic engineering based agriculture. Again, this BT will be discussed under biotechnology chapter. There I told you how BT crops can be prepared by transferring the gene from this bacteria into a plant. हमें गोटे बैक्टीरिया रा जीन को गछर सेल भितरे ता क्रोमोसोम भितरे घुसा देबे, ताले ताको हमें इंजीनियरिंग कर देबे, प्लांट को इंजीनियर कर देबे, तेणु ताको हमें कहि देबा जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ता जीन को मॉडिफाई कर देबा। विल सी लेटर, नॉट नाउ। ताले देखिलो Bacillus thuringiensis is a very beneficial insect used as a biopesticide. Correct? Now, fungus. Another free living soil fungus found in the root ecosystem is a trichoderma. This is the genus Trichoderma. So Trichoderma is a fungus. It is found in the soil, basically very much close to the root ecosystem. So interestingly, this is not harmful. Rather, it is protecting the root from harmful pathogens. Security duty କରୁଛି। जहाँ रूट को जगी गला ता रूट को कौन से पैथोजेन माडी करियो, पैथोजेन को प्रोटेक्शन दोची, ये गछर रूट को प्रोटेक्शन दोची फ्रॉम द सेवरल पैथोजेन्स। नाउ वायरसेस, बहुत वायरस हार्मफुल, वायरस पूरा इंडिया को बंद कर देइছে, हमें सब जानछु, वर्ल्ड को बंद कर देइছে। और HIV वायरस तो धीरे धीरे मारूँ, हमें नेक्स्ट डिजीज चैप्टर पढ़िया। तो एठी कौन सा वायरस बेनिफिशियल? सो दैट वायरस इज कॉल्ड बैक्यूलोवायरस। A group of virus, baculoviruses are pathogenic to insects and arthropods. Baculovirus under रे गोटे जीनस अछि, सेटा से जीनस रो नाम हला न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो virus. एटा जेनेरिक नेम that must be underlined when handwritten पढिथिले। तेणु न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस नाटा मन रखिबो, दैट इज कमिंग अंडर अनदर ग्रुप बैक्यूलोवायरस, मन रहबो। तेणु बैक्यूलोवायरस गोटे बायोपेस्टिसाइड बा इट इज ए बायो कंट्रोल एजेंट, एंड इंटरेस्टिंगली दिस विल किल ओनली टारगेट ऑर्गेनिजम्स। या पे टारगेट के ना insect or arthropods. Insect is also under arthropods. So these are narrow spectrum. ये सब वर्ड गुड़ा को important. These are species specific. टारगेट ऑर्गेनिजम को मारिबा और काहा को मारिबो नहीं। ता माने कोन? Only insect will be killed. Plants, mammals, birds, fish, they will remain unharmed. तांकर किछि क्षति होबो नाही।
So this is a very much desirable when beneficial insects are being conserved. ताले आमे आगुर कोन एग्रोकेमिकल बेस्ड मारी दोथिले केमिकल से दरकार मरुथिला अदरकार भी मरि जाउथिला तेणु से अदरकार गुडा को बेनिफिशियल इंसेक्ट एबे इंसेक्ट आगुर कहि दोछि इंसेक्ट इज नॉट ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म but some insects can be used as a pesticide. That means this insect will kill another insect. मच्छर का दुश्मन कौन? मच्छर हमारे लिए दुश्मन, मशा हमको कामुडुछि, मस्किटोज। ताले मस्किटो को डिस्ट्रॉय करिया पई इंसेक्ट होछि ड्रैगन फ्लाई। कंकी ओडिया रे कहउछ। So these dragonflies are beneficial insects because they kill mosquitoes as well as aphids. Aphids and mosquitoes. Aphids कौन? Aphids होची साना साना इंसेक्ट जोटा कि गछर अगरे लागिले जेमेजे गोरु गाइडरे टिंक रक्त खाइनिए। Aphids also suck the plant nectar, plant materials, so that plant cannot grow further. गछर रस टाणी नब ताले याको नष्ट करिया पे हमें आगोटे इंसेक्ट ताले बायो कंट्रोल एजेंट्स साधु सन्यासी कौन कले तांकर तो ड्रेस बहुत कम तांकर ड्यूटी होची सकाळ होला माने भगवान आराधना रे लागिले होम यज्ञ कले जंगल रे जाई रहिले संसार त्याग कले किंतु तांकर से साना साना कोकिनी ड्रेस को मूसा काटी देला तेणु जीव हत्या करिवे नाही तेणु से कौन कले बिराड़ी पाड़े गोटे जंतु द्वारा गोटे जंतु को दमन करिबा दैट इज द नीति ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट सो बायो कंट्रोल एजेंट्स which will control one organism by the use of another organism तेणु मूसा को दमन करिया पे बिल्ली पड़ when all मूसा vanished बिल्ली सो लंच टिफिन डिनर करके सब मूसा को खाई गले वर्तमान बिल्ली साधु सन्यासी सामने कांदिले कहले अब हम क्या खाएं मूसा तो नहीं है गणेश जी के पास चले गए तो वर्तमान कौन हो दया परवश होई सन्यासी पणी गोरु पड़े बिकॉज बिल्ली विल ड्रिंक मिल्क गोरु पड़े कहले सर जो संसार को हम छाड़ी के आसीथिलु वर्तमान धीरे धीरे सही संसार मोहमाया रे पड़िलु माया माने कौन सधर्मिणी पत्नी तेणु से गोरु वर्तमान तार केयर नवा पई केयर टेकर दरकार तो किछि सन्यासी को संगे बाहागर होला चलला पुणी घर संसार जन्म तामाने एटा कोन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी आर प्रैक्टिसिंग बायो कंट्रोल एजेंट्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आमे बहुत आगुरु ही याको प्रैक्टिस करछु वर्तमान तो कागज कलम रे दि तीन पद कोन पढछु मोटे स्टोरी आकर कहले हो another insect ladybird ladybird beetle खाली beetle कह देले आमे कह देबा गोबर पोको beetle ladybird beetle एटा गोटे बेनिफिशियल इंसेक्ट नेट रे सर्च कर देले देखिबो से इंसेक्ट रो देहटा रेड कलर ता देह रे कला कला पैच दैट इज ए बेनिफिशियल इंसेक्ट
ताको लेडी बार्ड बीटल कहते है। तेणु से लेडी बार्ड बीटल दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग बटरफ्लाई कौन एटा देला सी भी से एफिड्स और मस्किटो को कोडे कंट्रोल करे तुम बरे लिखा है रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स ता देहरे अछि तेणु एटा गोटे बायो कंट्रोल एजेंट्स एटा को खाली लास्ट रे रखिली कारण ए तीनटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रे मन रखिबो टाइम सरे सरे शीघ्र बायो फर्टिलाइजर्स ताले बायो फर्टिलाइजर्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कारण जो चैप्टर रे पढुछो सूत्र ताले बायो फर्टिलाइजर्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स that when applied increase the soil fertility तेणु soil fertility को बढ़ेबो enrich the nutrient quality of the soil ताले एग्जांपल्स कौन स्कूल लेवल रो पढ़ि आसुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अछि एटा कहले सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर राइजोबियम का बयटो देखि दो आजोटोबैक्टर एजोस्पाइरिलम एगुडा को फ्री लिविंग तो बायो फर्टिलाइजर्स पाई आमे सब यूज करछो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया खाली बैक्टीरिया कौन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कारण नाइट्रोजन इज वेरी एसेंशियल फॉर एमिनो एसिड सिंथेसिस तो डाली जातीय गछ लगैला माने तार रूट नोड्यूल रे राइजोबियम आसी रहबो नाइट्रोजन फिक्सेशन करिवो तुम जानिछ खाली एग्जांपल गुडा मन रखियो देन फंगस फंगस अंडर रे गोटे जीनस लेखुची ग्लोमस सेठी जेंति लिखितिले ट्राइकोडर्मा एटी सेमती गोटे फंगस रो साइंटिफिक नेम ग्लोमस एई फंगस ता गोटे फर्टिलाइजर वाला यूज होछ ताले एई फंगस कोन करिवो ना हायर प्लांट रो रूट रे से जो एसोसिएशन करिवो ताको कहबा माइकोराइजा तो एई माइकोराइजा ता वेरी मच एसेंशियल कारण ग्लोमस फंगस माटी रो फास्फोरस एब्जॉर्प्शन करी गछ को दो आ रूट बर्न पैथोजेन रो अटकैबो जदि माटी रे बेसी लुण अछि सालिनिटी समुद्र कूलिया अंचल लुणा माडी जाईछि बन्या पानी ताले फसल होबनी तो याकू देले से गछ को लुण रो भी रक्षा करबो देन ड्राउट ताने वाटर अवेलेबिलिटी कम अछि चाष होई परिबो किंतु याकू पकेले से पानी झमेला भी मेंटेन दो तनो सॉइल रे जो बहुत वाटर गुडा को कैपिलरी वाटर टा एक्चुअली एब्जॉर्प्शन हुए ता छडा अन्य वाटर को ये हाइफा देके घुसारी घुसारी आन का पार्टनर को दे दो कारण इट इज ए पार्टनरशिप बिटवीन चेरो एंड फंगस तो फंगस भी इन रिटर्न किछ पाई गला देन साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया याको लोअर क्लास रे पढ़ी है आसो ब्लू ग्रीन algae बीजीए तो ये ब्लू ग्रीन algae एनाबिना नॉस्टॉप ऑसिलेटोरिया एडा का सब पैडी फील्ड रे देले एडा डिकम्पोज करी ऑर्गेनिक मैटर गुडा को माटी रो सॉइल रो फर्टिलिटी बढ़ेयो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग रे हमें डेटा जिंस यूज करछु बायो फर्टिलाइजर यूज करछु बायो पेस्टिसाइड यूज करछु तो ये मटेरियल गुडा को जेमते लास्ट क्लास रे कहिथिले आप इन गोबर ग्रास प्लांट स्लरी फीड करू स्पेंट स्लरी को मैन्योर हिसाब रे यूज करू दैट इज आल्सो बायो फर्टिलाइजर एवं की कोन करा होचे वर्मी कंपोस्टिंग माने आर तुआर को चाष करा होचे तमे लोअर क्लास रे पढिछो दे आर द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स कृषकर बंधु नेचर्स प्लाउमैन
नेचर फलधारी बलराम नंदी तेणु एठी आर्ट वन को भी आमे यूज करि परिबा सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करिया के फॉर योर इंफॉर्मेशन आर्ट वन इज नॉट ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म मो तेणु एठी खाली माइक्रोब्स रो फोकस कर लास्ट सिंगल सेल प्रोटीन 5 minutes रे विल फिनिश एटी नाटा के लिखि होचे सिंगल सेल proteinous food very much important and it is costly also प्रोटीन जातीय खाद्य बहुत कॉस्टली तेणु बर्तमान कौन कराउचे बॉयलर कराउचे तेणु बॉयलर को खुआउचे सीरियल्स चाउल धान गहम खुआइल तापर बॉयलर पाइल फूड चेन नियम कौन कहूची 10% एनर्जी ट्रांसफर 10% नियम तेणु तुम जदि 10 किलो चाउल गहम खुआइब ताले 10 किलो 10% केते 1 kg तेणु 1 kg बॉयलर पाइब तेणु प्रोटीन टा कॉस्टली सदा सिंगल सेल प्रोटीन दिस इज ए मिसनोमर तमे भाबिबनी केबे जो गुडा को सिंगल सेल ताको केवल खिया देले प्रोटीन हिला नो डाउट इट इज ए फूड सब्स्टिट्यूट फूड सप्लीमेंट तेणु किछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मो एटी दीटा एग्जांपल कहबी गोटे कहबी धर ईस्ट लिखि ईस्ट टैबलेट्स हमें खाउछु एटा को न्यूट्रिशन दोचे विटामिन न्यूट्रिशन आ गोटे स्पिरुलिना वेरी इंपोर्टेंट एग्जांपल स्पिरुलिना एटा गोटे साइनोबैक्टीरिया आ मार्केट रे जते प्रोटीन फूड सप्लीमेंट देखे तो स्पिरुलिना फोर्टिफाइड मार्केट रे मिललाने स्पिरुलिना टैबलेट तेणु स्पिरुलिना को वेस्ट वाटर रे कल्चर करिकी हार्वेस्ट कर समय नहीं नले आ दिले कहि थांती शॉर्टकट कर दूची देख गोरु गाई आमे पाळुछु गोटे 250 केजी गोरु पाळिले आमे ताठू केते क्षीर आशा करिया से जेतिकी क्षीर दउना कहीं ता दिरु आमे प्रोटीन आशा करिबा बा पाइबा केते बहुत कम प्रोटीन पाइबा हला तेणु या बदल रे आमे जदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाष करिया 250 केजी गोरु अति बेसी रे 25 ग्राम प्रोटीन दो किंतु आमे जदि मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस एटा परीक्षा पे इंपोर्टेंट मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस ए बैक्टीरिया को कल्चर कले सी ओवरनाइट गोटे दिन भितर गोटे राति भितर से 25 टन प्रोटीन दो तेणु गोरु किए पाल आमर ये बैक्टीरिया पाले लाभ अच्छी तेणु एगुड़ाक लो कॉस्ट प्रोटीन शुण नाटा कहीं मिसनोमर कहली आम जो मार्केट रे छतु खाऊ 30-35% प्रोटीन अच्छे तेणु सेटा तो सिंगल सेल है तेणु मशरूम तेणु माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर खत्म होगा थैंक यू।